Investigative reporting fellowships are being offered by Pakistan Press Foundation with the support of Free Press Unlimited, the Dutch-based media development organization. And the purpose is to promote investigative journalism in Pakistan. It's going to be a 3-year project, and we are going to offer 30 fellowships per year in 2 batches. Each fellow is paired with a senior journalist who is going to be the contributing editor. Before the piece is published or broadcast, it is going to be vetted by a media lawyer. So it should also have the best in ethical and legal standards. Identifying focus statement of their story, and then we told them that how they can strengthen or bring investigation into their story by using right to information law, and then we told them how to use data sources, how to add colors to your story in form of using data, and then we defined proper sources before them, and we told them kind of sources, good, bad, and then we taught them interviewing techniques and how to ask follow-up questions. My project is about whether criminals who come out of jail, whether they find their feet in society again. And I'm going to work on one criminal. I'll start with one criminal who will act as a voice in my project, in my story. I'm going to follow him or her. I'm going to follow their lives after they come out of jail, and I'm going to see how well they fit into the society that they left a long time back. थरकोल की वजह से वहाँ के माहौलियात और वहाँ के जो इकोलॉजी है उस पर क्या क्या असरात पड़ेंगे, किस तरह वो मुतासर हो रही है, और क्या क्या कवानीन हैं जो जिन पे अमल पैरा नहीं हो रहे, तो उससे जो भी मामलात हो रहे हैं वो सबको मैं कवर करूँगा। मेरा स्टोरी का जो आइडिया है वो ट्रांसजेंडर के साथ जो बिहेवियर चेंज है गुज़िश्ता 2 दहाइयों में, उसको मैंने फोकस किया हुआ है, और उसके साथ जो ट्रांसजेंडर को आइसोलेट किया गया है सोशली और इकनॉमिकली, बोथ इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स। मेरी स्टोरी है, उस पर मैं फोकस करने वाली हूँ फॉल्स ड्रग्स पर। पाकिस्तान में फॉल्स मेडिसिन का जो क्राइसिस है वो क्यों बढ़ रहा है इतना, उसके पीछे कौन लोग हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, और कैसे हम इसको रोक सकते हैं, और इस क्राइसिस की बढ़ती हुई क्या वजूहात हैं। I'm working on the maternal mortality and kids mortality rate in the 3rd district, which is the bordering district between India and Pakistan and part of the larger Rajasthan desert. मेरी जो स्टोरी है वो फोकस है साफ़ पानी की फराहमी सिंध में, कि बिलियंस रुपीस गवर्नमेंट ने खर्च कर दिए हैं, लेकिन स्टिल जो लोगों को सप्लाई हो रहा है कि 75% पॉपुलेशन जो सिंध की है वो कंटामिनेटेड वाटर उनको सप्लाई हो रहा है। तो इतना सारा जो पैसा खर्च हुआ है वो कहाँ गया, और क्यों नहीं अब तक लोगों को ये साफ़ पानी मुहैया किया जा रहा। और उसके साथ साथ ये है कि इस कंटामिनेटेड वाटर की जो फराहमी है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। हमें तो अभी तक ये पता नहीं था कि पिच कैसे लिखेंगे और स्टोरी फोकस क्या होता है, फिर की सोर्स क्या है, फिर गुड सोर्सेज क्या है। हमने उन सब चीज़ों को ग्रैब किया और उसकी वजह से मेरे ख्याल में स्टोरी में मज़ीद निखार आएगा। I have been a practicing journalist since last 29 years, but there is still, as they said, there is always a room for improvement. So this fellowship will be really helpful for me to get to know the new techniques of data collection and the use of RTI and other things. जब लोग कहते हैं कि हम जो सच देखना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको एक तहकीकाती रिपोर्टिंग को सही मानों में फैक्ट्स एंड फिगर को सामने लाएं, बिला तफरीक और बगैर किसी उसके डर और खौफ के।
तो इंशाल्लाह उसके जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात पड़ेंगे और सहाफ़ियों के लिए जो इमेज है उसके में इजाफा पड़ेगा। Such editorial meetings, when reporters sit together and they have this opportunity to look at each other's story plan, they can really all these different minds come together, and that enriches the process, of story investigation. ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को एक दफ़ा फिर ज़िंदा कर देगी। और बहुत सारे हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनकी पहचान ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग थी, वो बेचारे बैठ जाएंगे, उनको ना वसाइल उस तरह से मिल रहे होते हैं, ना उनको स्पेस मिल रही होती है। तो इस फेलोशिप से एक चीज़ है कि हमें वसाइल भी मिलेंगे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म रिपोर्टर के लिए जितनी ख़तरनाक है उतनी ही वो उन लोगों के लिए और बाज़ दफ़ा उससे ज़्यादा उन लोगों के लिए है जिनके बारे में रिपोर्टिंग आ रही है। राइट टू इंफॉर्मेशन लॉज हैं वो उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में है। पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ऊपर खातर खा काम हो रहा है। अभी नई तहकीकाती रिपोर्ट पनामा इशू ने हलचल भी मचाई और आप देख रहे हैं कि पनामा इशू इस वक्त गले का ढोल बांध चुका है मौजूदा हुकूमत के लिए। पहले तो मुझे देखनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कि क्या हमारी पॉलिसी में वो स्टोरी आती है, वो टॉपिक आता है, यानी मेरा इदारा उसको पब्लिश करेगा या नहीं करेगा। तो देखा ये गया है कि जो दो मामलात हैं, यानी एक रिस्क फैक्टर और दूसरा फाइनेंशियल मामला, उस पर कई इदारे जो हैं वो आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। ये जो इदारे हैं उनकी तरफ से मुश्किलात होती हैं, जो बैंड आउटफिट्स हैं उनकी तरफ से भी, लेकिन ये है कि आप क्योंकि काफ़ी काम हुआ है इस पर तो आपको डाटा वगैरह मिल जाता है। फिर आप ये कि क्योंकि अब काम कर रहे हैं तो हमारे लिंक्स हैं, जो बैंड आउटफिट्स के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उनसे भी हमारे राब्ते होते हैं, जो मिलिट्री के हमारे जो लोग हैं स्पोक्समैन हैं उनसे भी राब्ता होता है, तो चीज़ें मिल जाती हैं। आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। Legwork. If you are doing legwork for investigative report, you meet relevant people, you get relevant data, you get relevant report, and then you reach the conclusion. Basically portray a true picture. It is investigative journalism. Concentrate on things that you know, on a beat that you know well, narrow the focus both geographically and in terms of the area that you are covering issue-wise. Choose a topic that you think is going to be achievable. Find key informants who will tell you what the situation is, and then go to your sources and corroborate from them, and then write about it and write fearlessly about it.